ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਮੈਂ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਿਆਨ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਵੀਰ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏ ਆ, +2 ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵੀ। ਤੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਇਛੁਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਜੀ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਥਰੂ ਜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਰੈਡੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਰਡਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ। ਸਪਟੈਂਬਰ ਇਨਟੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਟੇਕ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਯੂਕੇ ਜੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ, ਜਰਮਨੀ, ਬਾਕੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼, USA। ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਫਿਸਿਸ ਹੈਗੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸਿਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, ਪਰ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਾਰਾ ਮੋਨੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਰੀਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਸਲ ਫ੍ਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ। 25 ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਕਸਪਰਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਕਈ ਵਾਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਮਈ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇ ਜੁਲਾਈ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਵਰ ਅਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜੂ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਗਲੋਬਲ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਸਾਡੀ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਐਕਸਪਰਟੀਜ਼ ਆਫਟਰ ਆਲ 25 ਸਾਲ ਦਿੱਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕੰਪਨੀ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਫੁੱਲੀ ਇਕੁਇਪਡ ਹੈ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰੇ ਤੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਵੀ ਦਵਾਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲਿੰਗ ਵੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਰਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੱਚਾ ਕੈਂਪਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਓਕੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੂਬਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਆਲ ਓਵਰ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਾਂ ਬਰੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ डिटेल ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। अभी हमारे साथ हैं सागर जी, जो कि न्यूजीलैंड स्टडी वीज़ा एक्सपर्ट हैं। तो अभी हम जानेंगे न्यूजीलैंड का क्या पूरा प्रोसेस रहने वाला है वीज़ा। और सागर जी मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, हमारे पंजाब में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है न्यूजीलैंड, तो प्रॉपर क्या प्रोसेस होता है न्यूजीलैंड का जी? जी बिल्कुल सही बात है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा फेमस है। मैं ये बोलूँगा न्यूजीलैंड एक खूबसूरत कंट्री के साथ साथ बहुत अच्छी डेस्टिनेशन है पढ़ने के लिए जी। मैं अगर उसके रीज़न है, उसके कॉम्बिनेशंस हैं काफ़ी सारे। सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन न्यूजीलैंड में बहुत अच्छी है जी। सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूँ पॉपुलर प्रोग्राम्स की, तो वहाँ पे IT का प्रोग्राम्स जैसे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया, या फिर फाइनेंस का प्रोग्राम हो गया, बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसमें PR अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप कंपेयर करो काफ़ी कंट्री के मुकाबले जी। जो टॉप कोर्सेज हैं वो जैसे हमारे पंजाब में मैं बोल रहा हूँ वो पॉपुलर है, लोग उधर ही ज़्यादा जाना पसंद करते हैं जहाँ उनको ऐसे कोई अच्छी स्टडी हो और उसके बाद हमें जॉब बेनिफिट्स भी मिलें जी। बिल्कुल। मैं एक आंकड़ा बताऊंगा कि वो सबसे अच्छा है न्यूजीलैंड के लिए, कि जॉब की गारंटी तो कोई भी कंट्री नहीं देती, बट अगर चांसेस की बात करूं, अगर आप न्यूजीलैंड से पढ़ते हो तो एवरेज यूनिवर्सिटी में एम्प्लॉयमेंट का चांस 85% रहता है जी। और अगर आप यूनिवर्सिटी से पास आउट होते हो तो 91% चांसेस रहता है
जी जी जॉब का लगने का आफ्टर स्टडीज। जी। और मैं बात करूं तो बेनिफिट्स ऑफ लेवल 9 जैसे मास्टर्स के होते हैं, तो क्या बेनिफिट्स रहते हैं जी मास्टर्स के? जी, बेनिफिट लेवल 9 प्रोग्राम का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि मास्टर्स प्रोग्राम न्यूजीलैंड में 1 साल की होती है। 1 साल की भी होती है, 16 महीने की भी होती है, और इसके बाद बच्चे को 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जी जो और किसी कंट्री में मुझे नहीं लगता मिलता है। दूसरी सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपका स्पाउस आपके साथ ट्रैवल कर सकता है इसमें। ओके कोई क्राइटेरिया नहीं है एज सच, बट अगर मैं बात करूं तो एज का भी कोई गैप का कोई क्राइटेरिया नहीं होता। अगर आप 54 साल के भी हैं तो आप न्यूजीलैंड में पढ़ने जा सकते हैं जी। और पोस्ट स्टडी वर्क बात करेंगे, जैसे कि स्टडी कंप्लीट होगी तो उसके बाद वर्क का क्या रहता है जी? जी, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द कोर्स अगर मैं बात करूं तो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट 1 साल से 3 साल के बीच में वेरी करता है। जैसे हमने पिछले कन्वर्सेशन में बात की कि मास्टर्स का क्या बेनिफिट है, तो सबसे बड़ा बेनिफिट मास्टर्स का ये भी है कि 1 साल की मास्टर्स या 16 महीने की मास्टर्स के बाद 3 साल का वर्क परमिट मिलता है जी। तो वर्क परमिट को लेके, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट को लेके न्यूजीलैंड बहुत सूटेबल है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए जी। और वीजा प्रोसेस सागर जी क्या रहता है? जैसे अभी जुलाई इनटेक और सितंबर इनटेक में क्या रहने वाला है जी? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूजीलैंड ओपन है जुलाई इनटेक के लिए, और आने वाले सितंबर नवंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशंस खुली हुई हैं। जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहते हैं अप्लाई कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात न्यूजीलैंड में बेनिफिट ये है कि स्टूडेंट को फीस भरनी है आफ्टर गेटिंग वीजा अप्रूवल। मतलब पहले आपकी वीजा फाइल होगी, आपका अप्रूवल आएगा जिसे बोलते हैं अप्रूवल इन प्रिंसिपल जी। अप्रूवल इन प्रिंसिपल आने के बाद आप वीजा फीस पे करेंगे जी। अगर मैं बात करूं टाइम कितना लगता है, तो वीजा आने में कम से कम 1 महीने का टाइम प्रोसेस है। ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, 45 दिन तक भी जा सकता है, बट अगर मैं एवरेज टाइम की बात करूं तो 1 मंथ इज द टाइम पीरियड। ओके जी। तो मैं ये कहना चाहूंगा जो भी स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं न्यूजीलैंड के लिए और पढ़ना चाहते हैं दुनिया की टॉप नॉच यूनिवर्सिटी में, तो आप प्लीज हमें कनेक्ट करिए। तो अभी हम बात करेंगे मैम प्रियंका से, जो कि कनाडा एक्सपर्ट हैं, और अभी जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं +2 और ग्रेजुएशन की है, तो क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है सभी जानकारी आपसे लेके देंगे। मैम कितने टाइम से आप ग्लोबल अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़े हुए हैं जी? मुझे 8 साल हो चुके हैं ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज के साथ काम करते हुए जी। ठीक है मैम। और ज़्यादातर आप कनाडा के एक्सपर्ट हैं तो कनाडा की फाइल ही देखते हैं मैम? हाँ, कनाडा का स्टडी वीजा स्टार्टिंग से एंड प्रोसेस जो भी रहता है स्टूडेंट्स के लिए वो सब मैं देखती हूँ, अलॉन्ग विद द काउंसलर्स जो हैं हमारे पैन इंडिया टीम्स के साथ, मेरी अपनी टीम के साथ। सो हम सारे मिलके कनाडा का ही वर्क करते हैं। ठीक है मैम। अगर मैं प्रोसेस पूछूं मैम, जैसे सितंबर इनटेक है तो क्या प्रोसेस रहने वाला है जो अभी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हैं कनाडा के लिए? सितंबर इनटेक जो है अभी चल रहा है, बट ऑलमोस्ट अभी खत्म भी होने वाला है लगभग 1-1.5 महीने में और बट हाँ, उसके साथ साथ जनवरी भी स्टार्ट हो चुका है। जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्जाम्स दे दिए हैं +2 के या लास्ट ईयर में पढ़ रहे हैं अपने ग्रेजुएशन के, सो वो दोनों ही अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। और आपको अप्लाई करने के लिए अगर आप +2 के एग्जाम दिए हैं तो आप अपना जो है प्रेडिक्टेड स्कोर्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में है तो अपने जो भी लास्ट एग्जाम्स दिए हैं आपने उसकी मार्कशीट के साथ आप अपना प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है मैम। मैम आईलेट्स है कंपलसरी है या बैंड आए हुए जरूरी है कि विदाउट आईलेट्स अभी हम अप्लाई कर सकें और बाद में आईलेट्स का एग्जाम दे सकते हैं? देखिए, आईएलटीएस की अगर मैं बात करूं कनाडा में, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो एग्जाम रहता है, बट हाँ ऐसा नहीं है कि आप उसके बिना अभी एप्लीकेशन प्रोसेस नहीं कर सकते। अब बहुत सारे कॉलेजेस हैं कनाडा में जो कि अगर आपने सिर्फ आईएलटीएस का भी पेपर रजिस्टर कर लिया है तो उसके बेसिस पे भी आप एप्लीकेशंस जो है प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर आपके पास स्कोर्स हैं आईएलटीएस के तो उससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं है। ओके मैम। तो मैम बजट क्या रहने वाला है अभी और क्या क्या चेंजेस हुए हैं? और जैसे पहले लास्ट आप बोल रहे कि जनवरी इनटेक था, ठीक है ना, अभी सितंबर इनटेक आने वाला है, उसके बाद फिर जनवरी आने वाला है, तो जैसे कई बार रिफ्यूजल्स भी हुए हैं स्टूडेंट के, और क्या क्या चेंजेस आए हैं वीज़ा में? वीज़ा में अगर मैं बात करूं ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। पहले हमारी 2 कैटेगरीज रहती थी, एसडीएस और नॉन एसडीएस, जो कि कनाडा गवर्नमेंट ने हटा के जनरल कैटेगरी कर दी है, जिसमें
कोई भी बच्चा अप्लाई कर सकता है इसमें। कोई हमें स्ट्रीम को चूज नहीं करना है कि हम एसडीएस में जाएंगे, नॉन एसडीएस में जाएंगे। जो कि हमें सबसे ज्यादा ध्यान रखना है वीजा में, वो ये रखना है कि आप जो भी फाइनेंशियल्स हैं अपने, वो स्ट्रांग रखें। और अगर हो सके तो अपना जीआईसी पहले पे करके आप अप्लाई करें, क्योंकि हाई कमीशन जो है बहुत ध्यान से इन सब चीजों को देखता है कि आपके फाइनेंशियल अलोंग विद योर फाइल कितना स्ट्रांग है। एक आपका आईएस भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अगर आपका ओवरऑल 6 है और एक में 5.5 आप वीजा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, पर हाँ अगर आपका 6 है और मिनिमम भी 6 रहेगा ओवरऑल के साथ, वो ज्यादा बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा वीजा पर्पज से। मैम बजट क्या रहने वाला है मैम? बजट देखिए, जो कनाडा में फीस स्ट्रक्चर का आता है, जो आपकी अगर मैं फीस स्ट्रक्चर की बात करूं, एक साल की जो कॉलेजेस की फीस रहती है वो मिनिमम से मिनिमम भी 18 से 20 हज़ार डॉलर रहती है। उसके साथ आपका लिविंग कॉस्ट रहता है जो कि 20 हज़ार डॉलर 635 रुपए है। बट अगर आप उसको पे नहीं कर सकते हैं जीआईसी और आपको पे नहीं करना है, तो आप उसको अपने बैंक अकाउंट में भी शो कर सकते हैं, पर वो मिनिमम 3 मंथ्स ओल्ड होना चाहिए। पर एज एन एजेंट और जितना मुझे एक्सपीरियंस कनाडा में है, मैं हर बच्चे को यही रिकमेंड करती हूँ कि अगर आप कनाडा पढ़ने ही जा रहे हैं तो अपना जीआईसी पे करें, वो ज्यादा आपके लिए जो है सपोर्ट करता है आपकी वीजा फाइल में। ओके मैम, और भी आप जानकारी डिटेल में लेना चाहते हैं तो दिए गए नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। हम बात करेंगे भावना मैम से, जो कि यूरोप एक्सपर्ट हैं और कौन कौन सी कंट्रीज यूरोप में आती हैं। और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं यूरोप में, तो प्लीज़ वो वीडियो देखें पूरी, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज के जिनके रिफ्यूजल्स होते हैं वो भी सारे यूरोप में कवर अप हो जाते हैं। तो मैम क्या प्रोसेस रहता है ये यूरोप का, और कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं इसमें? जी एक्चुअली यूरोप इट्स अ शेंगन वीजा। ओके, तो बच्चा क्या होता है कि एक कंट्री में अप्लाई करता है, जिसके लिए स्टूडेंट को 29 कंट्रीज का शेंगन वीजा एक्सेस मिलता है, जिसमें स्टूडेंट अपना वर्क कर सकता है, स्टे कर सकता है और स्टडी तो डेफिनेटली कर सकता है स्टूडेंट। ओके, एंड बेसिकली हमारे पास कुछ यूनिवर्सिटीज, कुछ कंट्रीज हमारे पास ऐसी हैं जिनमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं, जस्ट लाइक फ्रांस, लातविया, लिथुआनिया, माल्टा एंड हंगरी एंड इटली। इन कंट्रीज में हमें आईएलटीएस की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके मैम, स्टूडेंट्स के। सो बेसिकली स्टूडेंट नॉर्मली जनरली यही क्वेश्चंस एंड कंट्रीज के लिए इंटरेस्टेड होते हैं। ओके मैम, जैसे मैम अभी सितंबर इनटेक का प्रोसेस चल रहा है और जुलाई का चल रहा है जी, अभी अक्टूबर इनटेक का भी चल रहा है साथ में। ओके मैम, सो अगर जिन बच्चों को अपना प्रोसेस करना है तो अक्टूबर एंड सितंबर दोनों इनटेक साइड बाय साइड ही चल रहे हैं। ओके मैम, तो मैम बजट क्या रहता है मैम यूरोप स्टडी वीजा का? सो स्टडी बजट का रहता है इनका 2 से 3 लाख। ओके मैम, स्टडी फॉर द 1 ईयर। ओके मैम, और साथ में वर्किंग का भी होता है मैम? हाँ, वर्किंग का भी होता है, 20 आवर्स पर वीक कर सकता है स्टूडेंट। ओके मैम, जो मैम कई बार और दूसरी कंट्रीज के रिफ्यूजल्स होते हैं बहुत स्टूडेंट के, तो वो कैसे कवर अप हो जाते हैं, और जो रिफ्यूजल स्टूडेंट्स हैं वो कैसे मतलब अप्लाई कर सकते हैं? यूरोप में ऐसे किसी का भी अगर किसी भी कंट्री से रिफ्यूजल है, बस रीजन देखना होता है कि आइडियली वो रिफ्यूजल किस लिए आया है। बिकॉज मैक्सिमम अदर कंट्री से जो रिफ्यूजल्स होते हैं वो या तो लैंग्वेज पर होते हैं, तो बेसिकली यूरोप में लैंग्वेज का रिक्वायरमेंट ही नहीं है, और या तो फाइनेंशियल पर होते हैं। तो अगर कनाडा, यूएस, ऑस्ट्रेलिया किसी अदर कंट्री का है तो यूरोप एक्सेप्ट करता है उसको। ओके मैम, जैसे हमारे पंजाब में जो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनका गैप होता है, जहाँ बहुत सारी कंट्री का रिफ्यूजल आ जाता है, तो वो स्टूडेंट्स का क्या प्रोसेस रहता है मैम? जो किसी स्टूडेंट का अगर गैप है 2, 3, 4, 5 साल, कोई प्रॉब्लम नहीं है यूरोप में। कितने भी साल, बस स्टूडेंट को जस्टिफिकेशन देनी होती है कि वो गैप आइडियली है किस चीज का। तो अगर बच्चा कुछ दे रहा है, अपना एक्सप्लेनेशन दे रहा है, अपना वर्क एक्सपीरियंस दे रहा है, तो वो भी कर सकता है स्टूडेंट, कोई इशू नहीं है उसमें। बेसिकली लो कॉस्ट ऑफ कंट्रीज है, 2 से 3 लाख की फीस है, लिविंग एक्सपेंस 8 लाख का आता है, बच्चे का आईएलटीएस चाहिए नहीं। तो दीज आर द मेन पॉइंट्स जो स्टूडेंट यूरोप करता है प्रोसेस। जैसे मैम कुछ स्टूडेंट्स का वीक प्रोफाइल है, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूरोप में भी हमारे पास कुछ कंट्रीज है, सपोज बच्चे का 55% है, ठीक है, और रिफ्यूजल भी है बच्चे का, आइल्स भी नहीं है। मेरे पास पोलैंड कंट्री है जो 55% ले लेती है, फीस उसकी 2 से 3 लाख रुपए है, 8 लाख लिविंग एक्सपेंस है, बिना आइल्स के वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे। तो इट्स अ वेरी इजी प्रोसेस कि बच्चा अपना प्रोसेस करता है, शेंगन वीजा मिल रहा है उसको। ओके मैम, बेस्ट ऑप्शन फॉर वीक प्रोफाइल स्टूडेंट्स। हाँ, बेस्ट प्रोफाइल फॉर द वीक।
तो अभी हमारे साथ हैं मैम गरिमा जो कि यूके एक्सपर्ट हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे। और जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं यूके स्टडी वीज़ा में वो प्लीज़ पूरी डिटेल से वीडियो देखें, क्योंकि बहुत ही ब्रीफ में हम सारी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। तो मैम जैसे यूके का हमने पहले भी बात की थी एक वीडियो में, जी जी तो जी। फिर दोबारा मैं एक बार प्रोसेस पूछना चाहूँगा कि प्रॉपर क्या उसके लिए कितने बैंड चाहिए और कितने टाइम का प्रोसेस होता है और कौन से इनटेक में स्टूडेंट्स जा सकते हैं? आइडियली क्या होता है, यूके का जो प्रोसेस है वो 1 महीने से लेके 6 महीने भी चल सकता है। जी। किस यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई कर रहे हैं, कितने फंड्स आपके रेडी हैं। लेकिन मैं ये बोलूंगी कि अगर आप यूके जाना चाहते हो और सितंबर 25 में जाना चाहते हो जी। तो अभी बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए। मई का बेस्ट टाइम? मई का बेस्ट टाइम है। 1 से 1.5 हफ्ते में आपका ऑफर लेटर आ जाएगा, जी। उसके बाद फंड्स, उसके बाद कैश, उसके बाद वीजा। तो ये सबसे बेहतरीन समय है अप्लाई करने का सितंबर 25 के लिए। तो कुछ स्टूडेंट्स की मैम जैसे क्वेरीज रहती हैं कि हमने टॉप पॉपुलर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है, तो वो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनमें स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? देखिए, पंजाब में बहुत वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स हैं, हम बहुत अच्छे स्टूडेंट्स के साथ काम करते हैं। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रैथक्लाइड है, एस्टन यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ है, बीपीपी यूनिवर्सिटी है, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी है। हम एक रेंज ऑफ यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए। और यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समथ, यूनिवर्सिटी ऑफ संडरलैंड, कॉवेंट्री यूनिवर्सिटी, ये पंजाब में बहुत अच्छा काम करती हैं और पंजाब के लिए इनके लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज हैं फॉर पंजाबी स्टूडेंट्स स्पेशली। ओके मैम। और मैम हम ये अक्सर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि जो इंटरव्यू होती है बहुत ज्यादा मतलब डर रहता है स्टूडेंट के मन में, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए कैसी तैयारी रहती है या क्या शेड्यूल रहता है मैम इंटरव्यूज के लिए? देखिए, इंटरव्यूज से हमें डरना नहीं है, क्योंकि इंटरव्यूज बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है स्टूडेंट्स को अपने बारे में बताने के लिए। तो वो इंग्लिश पे फोकस ना करके अगर अपने आप पे फोकस करें तो ज्यादा चांसेस होते हैं ये इंटरव्यूज क्लियर करने के। और कुछ ऐसा मिथ हो गया है पंजाब में कि एआई बेस्ड इंटरव्यू क्लियर नहीं होते। हमारे सारे एआई बेस्ड इंटरव्यू क्लियर हुए हैं। तो अगर आप हमारे जैसे एक क्रेडिबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहे हो, जहां हम बच्चे को ऑफर लेटर आते ही इंटरव्यू की तैयारी कराना शुरू कर देते हैं और हम आपको तैयार करते हैं, हम सिर्फ आपको रट्टे नहीं मरवाते, तो उससे क्या होता है कि एक बच्चे का बेस इतना स्ट्रांग बन जाता है कि फिर वो इंटरव्यू में फेल नहीं होते। तो अगर आपको क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू से हल्की सी भी घबराहट है तो आप अभी से हमारे साथ जुड़े, ताकि हम अभी से आपकी इंटरव्यू की तैयारी भी शुरू कर दें। ओके मैम। जो मैम वीजा की प्रॉपर पेपर रिक्वायरमेंट क्या रहती है जी? देखिए वीर जी, यूके का वीजा बहुत सारे और कंट्री से काफी आसान है, क्योंकि हमें 28 दिन पुराने फंड्स चाहिए सेविंग्स फिक्स्ड डिपॉजिट में। जी। स्पॉन्सर सिर्फ आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, वरना पैसा आपके अकाउंट में हो सकता है। लोन, एजुकेशन लोन, फुली सैंक्शन एजुकेशन लोन इज आल्सो 100% एक्सेप्टेबल। तो बहुत लंबा चौड़ा पेपर वर्क नहीं है। और अगर आप अभी से अपने वीजा डॉक्यूमेंट्स पे, पेपर वर्क पे काम शुरू करते हो तो मुझे नहीं लगता सितंबर 25 के लिए हमें कोई भी दिक्कत आएगी। ओके मैम। और जैसे मैम वीजा लग जाता है, जो आपने पहले बोला कि फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, लेकिन एक बार तो स्टूडेंट जो फीस फिल कर देता है, लेकिन जब यूके पहुंच जाता है, स्टडी करता है साथ में, तो पार्ट टाइम जॉब का क्या रहता है? उसको रहता है जब मैं लिविंग निकालूं या फीस निकालूं। जी जी। तो यूके में क्या है वीर जी, लंदन और आउटसाइड लंदन है। लंदन थोड़ा ज्यादा महंगा है क्योंकि मेट्रोपॉलिटन सिटी है, जैसे दिल्ली ज्यादा महंगा है अमृतसर से या पटियाला से। और अगर आप लंदन के बाहर जा रहे हो तो थोड़ा सस्ता है सब कुछ। लेकिन पार्ट टाइम जॉब्स गवर्नमेंट अलाउ करती है अप टू 20 आवर्स एवरी वीक। तो हर हफ्ते में आप 20 घंटे काम कर सकते हो। और क्योंकि यूके में पे स्केल बहुत अच्छा है और मिनिमम वेजेस भी बहुत हाई है, आप इतना पैसा कमा सकते हो कि इधर योर ट्यूशन फीस और योर लिविंग आप निकाल सकते हो। जॉब्स आर नॉट गारंटीड, बट अगर आप ठीक से स्ट्रैटेजाइज करो और अपना रेज्यूमे ठीक से प्रमोट करो तो जॉब्स यूके में मिल जाती हैं और पार्ट टाइम बिल्कुल लीगली अलाउड है। सो आपने सारी जानकारी ले ली है यूके की। पहले पार्ट में मैंने सारा प्रोसेस समझाया था और इस पार्ट में मैंने और भी क्वेरीज वीर जी के थ्रू सब आंसर्स कर दिए हैं।
आप अभी हमारे से कांटेक्ट करिए। हमारे 7 ब्रांचेस हैं पंजाब में, लोकल ब्रांचेस है जहां आप जा सकते हैं, काउंसलर से मिल सकते हैं, और सितंबर 25 के लिए ये बेस्ट टाइम है अप्लाई करने के लिए। सो प्लीज हमारी ब्रांचेस जाइए, हमारे काउंसलर से मिलिए। एवरीथिंग, सब कुछ बहुत जेन्युइन होगा, आपको कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमारे यूनिवर्सिटीज के लिए हमारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री हैं, विदाउट एनी चार्जेस। तो आप अभी के अभी हमारी ब्रांचेस में आइए। थैंक यू।